Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars. And today we'll finish polynomial. This is the last class of polynomial. So in two class of polynomial, we have discussed about the type of polynomial on the basis of degree and on the basis of terms and to solve them by splitting the middle term and to verify the relation between the coefficients and the zeros. And we have learned about to find the number of zeros by the graph. So this is all we have done. Now what we are going to do tomorrow, we are going to apply division algorithm in polynomial. And in these type of question, we have some zeros. Suppose we have a cubic polynomial, then in that type of question 2 or 1, okay, that means because the polynomial is of 3 degrees, so we must have 3 roots or 3 zeros, but we only have 2 roots and we have to find the third one. So how we can find the last and the third zeros? By applying the division algorithm. So first we must know what is division algorithm. And this is also called the fundamental theorem of division. Okay, the other name is fundamental theorem of division. So if a number is a and we are dividing this with v and the quotient we found that is q and the remainder is r, we can find a relation here between a, b, q and r. And what is that relation? That relation is like this: a can be written as bq plus r, and there is a condition for r that this r is always greater or equals to 0 and less than b. And this will be clear with an example. Suppose you are dividing 108 with 11. So here 11 nines are 99. 18 minus 9 gives you 9 here. Okay, so you can see here this is r, this is q quotient, this is divisor which is b, and this is डिविडेंड विच इज ए. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जिससे आप डिवाइड करो दैट इज कॉल्ड डिवाइजर. और जो हमारा आंसर आता है क्वोशंट एंड जो आपका लेफ्ट होता है रिमाइंडर दैट इज डिनोटेड बाय आर. सो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप 11 की 9 में मल्टीप्लाई करने वाले हो, 11 9 99 और प्लस उसमें ऐड करने वाले हो 9, सो वो आपको क्या देने वाला है 108, दैट इज इक्वल्स टू डिविडेंड. एंड दिस इज द डिविजन एल्गोरिथम. एंड इसके लिए क्या कंडीशन होगी भाई, हमेशा या तो आपका ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता. अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता 108 11 से, तो उस केस में आपका रिमाइंडर क्या आने वाला था 0. ठीक है, उस केस में हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है. ठीक है, अगर ये 0 नहीं आता है दैट मीन्स 11 इसका फैक्टर नहीं है, तो वो हमेशा 11 से तो छोटा ही होगा. अगर ये 11 के इक्वल भी हो जाता तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को एक और नंबर से इंक्रीज कर दोगे. ठीक है, तो इस b के लिए हमेशा, इस r के लिए हमेशा यहाँ पे कंडीशन होती है कि ये 0 से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा. ठीक है, तो आप इसको दूसरी फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो: डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, और ये यहाँ पे बहुत काम आने वाली है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो. इसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जिसमें हम इसको यूज करेंगे. ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो क्वेश्चन देखते हैं.
एक्सरसाइज से ले लेते क्वेश्चन। On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, polynomial gx. The quotient and remainder were x minus 2. And remainder were x minus 2 and what? And minus 2x plus 4 respectively. Find gx. So you can see here this polynomial, this px, this is the dividend because we are dividing this polynomial by what? By gx. So basically gx is the divisor, the quotient and the remainder. So this is qx because respectively it is given that quotient is this and remainder is this. Why I am writing it as qx and rx? Because these are the function of x, these are given in terms of x. So you can write it as qx and rx. And what is the division algorithm? Division algorithm is dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. So here the dividend is px, like this is equals to px. So you can write it px is equals to, what is divisor? Gx, because on dividing by this by gx we get qx x minus 2 and plus remainder minus 2x plus 4. So here we are. So we have to find the value of gx. So put all the values we have in this equation and from that equation you can find the value of gx. So just we have to write the value of px to the left hand side of the rule. Okay. And what is that? That is x cube minus 3x square plus x plus 2. और ये आपका किसके इक्वल है? ये है gx and the value of gx is not given. We have to find that value multiplied by x minus 2 plus minus 2x plus 4 because the value of rx is this. Now अभी आपका क्या रूल होता है? जब आपको किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके साथ जो प्लस या माइनस में होता है सबसे पहले हम उसको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, उसको इक्वल के दूसरी साइड हमको भेजना है, ठीक है। और कैसे भेजोगे? जो इधर माइनस में होगा उसको इधर प्लस में कन्वर्ट करके भेजना है और जो इधर प्लस में होगा उसको माइनस में कन्वर्ट करके भेजेंगे। आफ्टर दैट जिसके हमें वैल्यू निकालनी है उसके साथ कोई अगर टर्म है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो उसको फिर आपको इक्वल के दूसरी साइड भेजना है। और कैसे भेजना है? सेम मेथड में, ठीक है। मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगी डिवीजन में और डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सो यहां से आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस प्लस साइन का, वैसे तो मैं यहां से डायरेक्ट भेज सकती हूँ बट फिर भी मैं पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इस प्लस साइन के इस पे इफेक्ट डाल रहा हूँ। एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्लस साइन विद इन द ब्रैकेट बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस एंड प्लस इंटू प्लस प्लस। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। 3x² प्लस x प्लस 2
is equals to gx multiplied by x minus 2 minus 2x plus 4, and to the next line just send 2x and 4 to the either side of gx, that means to the left hand side, and it goes to the plus sign, and minus 4 is equals to gx into x minus 2. And what we have here, this is x cube, not x square. We left with x cube minus 3x square. X plus 2x gives you 3x, and plus 4 plus 2 minus 4 gives you minus 2. And here we have to find the value of gx. So now I am not writing x minus 2 as the multiple of gx. I am just writing it to the denominator of this. जब हमें gx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको सिंगल रखना है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो उधर किस रिलेशन में जाएगा, डिवीजन में. और डिवीजन आप किस मेथड से करो, या तो आप लॉन्ग डिवीजन से कर लो, नहीं तो इसको फैक्टराइज करो पहले. अब वो मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर है कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करो. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2. एंड अब जब आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, व्हाट द रूल फॉर दैट, वी हैव टू डिवाइड द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट वी हैव टू अरेंज both of them, the dividend and the divisor, in descending order of variable term. Then we have to divide the first term with the first term of the divisor. So that's how we can get the first term of the quotient. ठीक है, तो यहाँ पे आप x क्यूब को x से डिवाइड करोगे तो what we have here x square. So कितने टाइम्स आपने कैंसिल किया है x माइनस 2 से इसको x स्क्वायर टाइम. अब क्या यहाँ पे टर्म आएगी, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई इसको. जैसे आपने यहाँ पे डिवाइड किया था 108 को 11 से और 9 टाइम किया था तो 11 9 से 99. सो टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद एक्स माइनस 2 यू विल गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हियर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. अब ये आपको होता है माइनस, तो चेंज करिए साइन फिर. दिस इज कैंसिल बाय माइनस एक्स क्यूब and minus 3x square. Now don't consider it as minus 2x square. Now it is of plus sign. So minus 3x square plus 2x square gives you minus x square. And just take down 3x. Again, to find the second term of the quotient, divide minus x square with the first term of this, and you have minus x here. Now again this is minus x square minus minus, you have to multiply this minus x to x minus 2, minus minus gives you plus, this is 2x. Again you are subtracting this, this is the substituent, so this is plus minus, this is cancelled by this, and 3x minus 2x gives you x here. Now take down minus 2 and you can see here x divided by x gives you 1 and of plus sign. So again x minus 2 minus plus. So the remainder is 0. So what is the value of gx here? The value of gx is x square minus x plus 1. And your question is done. Okay. So let's discuss one more question and then we are going to end the class. Okay, and in that type of question we must have two factor and we have to find the third factor. So the question is,
obtain all other zeros of of 3x to the power 4. So here the question is little lengthy, but don't worry, the method is same. Minus 2x square minus 10x minus 5. Okay, if two zeros are, if two of its zeros are, and this is very important question, कुछ भी चेंज नहीं होता है, एज इट आता है क्वेश्चन आपका बोर्ड में. So give you 100% this question solution. So first of all, tell me how many zeros it can have. I have told you that the total number of zeros are equals to the highest degree of the variable term. So here the highest degree is 4. As you can see, the expression is here. So this is of 4 degree polynomial. So we must have 4 zeros and we have only 2 zeros. First is root 5 upon 3 and second is minus root 5 upon 3. So how we are going to find two other zero? First of all, if alpha beta are zeros of a polynomial, suppose px, then x minus alpha and x minus beta are factors of px. ठीक है, चलो सेपरेटली आप पहले लिख दो कि अगर ये इसके जीरोज है, सॉल्यूशन है, तो वो आपका जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस अल्फा से भी डिवाइड होगा और x माइनस बीटा से भी डिवाइड होगा. अब एक बात बताओ आप मुझे, जैसे हमारे पास एक नंबर है 12 और ये 2 से 3 से डिवाइड होता है, तो क्या ये 2 3 जा 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा. ठीक है, क्योंकि इसके और भी ज़्यादा है, इससे ग्रेड 4 हैं इसके सपोज आगे डिवाइज़र. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डिवाइज़र कितने हैं? 4 हैं. तो अगर उनमें से 2 अलग अलग उसके फैक्टर हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी उसका एक फैक्टर होगा. इट इम्प्लाइज, और ये ही पूरे जो क्वेश्चन है उसका सबसे की पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास x माइनस दिस, x माइनस पूरा विद इन द साइन माइनस दिस उसका फैक्टर है, तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी एक फैक्टर है. फैक्टर है तो हम डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास दोनों अदर फैक्टर आ जाएंगे. सो x माइनस एल्फा इंटू, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया है, अदरवाइज मैं फर्स्ट लाइन में इसको लिख सकती थी. x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px. ठीक है, और ये सब कुछ आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लाइज फॉर द गिवन px, गिवन जो हमारा यहाँ पे है गिवन px, गिवन px x minus square root of 5 upon 3 and x minus square root of 5 upon 3 is a factor of px. That is x minus 5 upon 3 स्क्वायर रूट में, और माइनस माइनस यहाँ पे आपका हो गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 upon 3. अब क्या आप यहाँ इसको इक्वल लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5 upon 3 के? बिल्कुल लिख सकते हैं. वाई? बिकॉज a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट्स हाउ you can get x square, first term is square, minus second term is root 5 upon 3, square gives you 5 upon 3. ठीक है, so x square minus 5 upon 3 is a factor. Now अब बच्चे क्या करेंगे यहाँ से कि मैम अब तो सिंपल है, हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 upon 3 से डिवाइड करने वाले हैं इसको. अरे नहीं भाई,
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करोगे ना, तो ये जो 5/3 है ये आपको कंफ्यूज कर देगा आगे के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 के। आपने क्या लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों टर्म को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें इससे राहत मिल जाने वाली है। अपॉन का 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करना है इसको, कंपैरेटिवली इजी है इससे डिवाइड अगर हम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास आ गया कि भाई ये किसका फैक्टर है। सो टू फाइंड अदर जीरोस या फैक्टर्स क्या करेंगे, डिवाइड करो px को 3x⁴ प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जगह कम पड़ने वाली है, तो क्या करें, इधर कर ले। टू फाइंड द अदर जीरोस, यहाँ से बाद में भाई यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन आपका, और ये हो जाएगा आपका 3x⁴ प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। नाउ डिवाइड दिस बाई 3x² माइनस 5। अब रूल आपका सेम है, डिवाइड हम कैसे करते हैं, हम फर्स्ट टर्म को, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे देखो 3x⁴ को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 3x² से, तो क्या मिलेगा आपको, x²। सो x² जब आपने 3x⁴ को डिवाइड किया 3x² से, 3 कैंसिल बाय 3, और जब डिवाइड कर रहे हो x⁴ को x⁴ से, देन x⁴ डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, 4 - 2 इज 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका क्या आएगा, दैट इज 3x⁴ मल्टीप्लाई दिस विद दिस माइनस 5x²। नाउ हियर it is minus 5x², so write like term just below the like term. Here it is x cube, so don't write 5x² here, just write minus 5x² below, down to just below to 2x² minus 2x². So now it is substituent, तो माइनस कर दो, इसके साइन चेंज कर दो, और यहाँ पे 6x³ के नीचे कुछ है नहीं, तो 6x³ ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि उसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ माइनस 2x² एंड प्लस 5x² गिव्स यू प्लस 3x², ठीक है, माइनस 10x देख लेते हैं जो भी नीचे पूरा था। अभी फिर दोबारा से आपको डिवाइड करना है इसको किससे, 3x² से, तो 3 2 जा है ना, 2x आएगा प्लस का, तो 2x मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, 6x³ की करोगे तो माइनस 10x, एंड माइनस 10x अगेन लाइक टर्म है 10x की, तो उसके बिलो लिखना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट है तो चेंज कर दो साइन, ये कैंसिल हो गया भाई, ये भी कैंसिल हो गया, एंड व्हाट वी हैव लेफ्ट हियर 3x², एंड वी हैव माइनस 5 टू द डिविडेंड, तो इसको नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे आ गया। सो 3x² को डिवाइड करोगे 3x² से 1 आएगा, एंड इट गिव्स यू 3x² माइनस 5, and it is a substituent, change the sign, and we have 0 as the remainder. So you can find 2 other zeros because we have only 2 zeros. You can find 2 other zeros with the help of this quotient. So px can be written as x minus root 5/3, and second one was minus plus x plus root 5/3 into x² plus 2x plus 1, and इसको आपको क्या करना है, वैसे तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1, बिकॉज x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, सो यही है। अदरवाइज आप इसको
बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हो, वो आपको सिखाया है। तो √5/3 x प्लस √5/3 x प्लस 1 ठीक है। सो अदर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड ऑल अदर फैक्टर। सो अदर जीरोज आर -1 बिकॉज दोनों जीरोज आपके क्या आए हैं, सेम आए हैं, एंड दोज आर इक्वल्स टू -1। सो राइट -1 2 टाइम्स बिकॉज 4 आपको दिखाने हैं, शो करने हैं, क्योंकि डिग्री 4 थी तो 4 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 4 रूट्स हो जाएंगे। So this is all for today and the polynomial is completed right now. If you have any doubt, please write in comment box and subscribe my channel. Don't forget to share and press the like button. This is all for today. We'll meet tomorrow. Bye.